Hello everyone, myself Vijendra Jain, Faculty Social Science, PCCP Division Resonance Quota. Today I am present here with the one short video for the chapter Manufacturing Industry, that is from the part of Geography, and here we will discuss about the whole chapter, that what are the importance of manufacturing industries, what kind of manufacturing industries we have in our country India, what are the main location of the manufacturing industries, what is the main reason of the pollution into the industries, and how can we conserve our industries, and last we will discuss about the map work of this chapter. As we know that from this chapter there will be a long type of question also, there will be a short type of question also for the 1 marks, and from this part we have the 2 marks map work also. So let me discuss about the chapter manufacturing industries. First of all, before discussing about the manufacturing industries, we have to discuss about the definition of manufacturing. As we know that manufacturing is the second sector of Indian economy, or we can say that we have the different kind of economic activities. So the manufacturing industries will be count in the secondary sectors of industries, or we can say that secondary sectors of activities. So let me discuss about the manufacturing industries. Here first of all, we just write the definition of manufacturing industries: production of goods in large quantities after processing from raw material, and it has been changed into the more valuable product is called manufacturing. When we change the raw material into a finished goods, then the process of this kind will be called the manufacturing. And for the changing the raw material into the production, we need to establish the different kind of industries into the different locations. So what will be the location and what will be the importance of the manufacturing industries? So the second point, that will be about importance of manufacturing, or we can say that what are the importance of secondary sector. So when we talk about the importance of manufacturing, there will be a question in the board examination for the 5 marks. That will be definitely long answers type of question. So there are some points that to be discussed, that what are the importance of manufacturing. The first point is economic strength of country is measured by the development of manufacturing sectors. As we know very well that the manufacturing industries is the backbone of the all kind of different industries. So it may be called that the development of a country will be depend on the manufacturing sectors also. Or we can say that if the secondary sector will be more developed, then the country also will be more developed. So here economic strength of country is measured by the development of manufacturing sectors. Then the second point, manufacturing industries help in modernizing agriculture. As we know that the different kinds of tools, different kinds of fertilizers, different kinds of pesticides made by the different kinds of manufacturing industries. So for the production, or we can say for the more production into the agriculture sector, we need to different kinds of HYV seeds, different kinds of chemical fertilizers, different kinds of pesticides. So it is possible because of only manufacturing, which forms the backbone of our economy. As we know that agriculture sector is the primary sectors, and more of the population, more than 50% of the population of our country is depend on the agriculture. So we want to grow more from the same land. That's why the different kinds of chemical fertilizers, different kinds of pesticides can be made through the manufacturing. Then the third point, reduce the heavy dependency of people on agriculture sector by providing them jobs in the secondary sector. If our secondary sectors or the manufacturing sector will be more developed, then definitely the dependency on the agriculture will be reduced. So it will be more important for the country. Then the fourth number point, eradication of unemployment and poverty from the country. As we know that when we become more developed, then the eradication of unemployment also, or we can say the eradication of the unemployment also, and poverty also decrease from the country. That will be good for us and for our country. Then the next, foreign exchange by the export. When we grow more from the secondary sectors, or we can say from the manufacturing, then the surplus goods will be transferred from our country to the another country by the export, and by the export we can earn money from the foreign also, or from the foreign trade. Then the next, minimize regional disparities by establishing industries in the tribal and remote areas.
There are some remote areas also in our country. By the establishing of manufacturing industries, we can develop that areas also. That will be good. Then the next, manufacturing sectors contribute 17% of GDP. When we talk about the gross domestic production, in gross domestic production of our country, there are something about 17% contribution of manufacturing sector. So we can say the secondary sectors, that will be good. Countries, they transform their raw material into a wide variety of furnished goods of higher value are prosperous, like the Japan. When we talk about the developed country in the secondary sectors, there are some country like Japan, like China, they have the more developed different kind of manufacturing industries in that part. That's why they are developed. Or first in the first line we also discussed that when the manufacturing sectors will be developed, then the country also developed very fast, rapidly. Now the next, industrial location. What are the criterias and how can we define that where will be the industry located? कहाँ इंडस्ट्री को लोकेट करना है, इस चीज के बारे में जब हम बात करते हैं तो लोकेशन को लेकर जब बात की जाती है तो एज वी नो वेरी वेल दैट व्हाट आर द मेन फैक्टर्स ऑफ द प्रोडक्शन, लाइक द लैंड, लेबर कैपिटल और वी कैन से द ह्यूमन कैपिटल. ये चीजें हम पहले ही जानते हैं कि अगर हम प्रोडक्शन को लेकर बात करते हैं, देयर आर द 4 मेन फैक्टर्स. जैसे कि हम बात करते हैं लैंड को लेकर, हम बात करते हैं लेबर को लेकर, हम बात करते हैं कैपिटल को लेकर, चाहे वो फिक्स्ड कैपिटल हो चाहे वो वर्किंग कैपिटल हो, और लास्ट में हम बात करते हैं ह्यूमन कैपिटल को लेकर. सेम लाइक दैट जब किसी इंडस्ट्रियल लोकेशन की बात आती है तो वहां भी कुछ फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं किसी भी इंडस्ट्री को लोकेट करने के लिए. व्हाट आर दे, कौन कौन से हैं, आइए बात करते हैं. देयर विल बी अ क्वेश्चन ऑफ 1 मार्क्स शॉर्ट टाइप या एमसीक्यूज के अंदर हम यहां से क्वेश्चन देख सकते हैं बोर्ड एग्जाम के अंदर. सो डेफिनेटली ये वाला पार्ट जो है आपका वो भी इंपॉर्टेंट होने वाला है. लोकेशन ऑफ फैक्टर, सबसे पहले लैंड की किस तरह का प्रोडक्शन आपको एस्टेब्लिश करना है, कहां पर, और उसके लिए जो लैंड पार्ट है वो सुटेबल है या नहीं. देन वेदर एंड द क्लाइमेट. अगर हम बात करते हैं जूट इंडस्ट्री को लेकर तो हम जूट की फैक्ट्री को या जूट के इंडस्ट्रीज को वहां लोकेट करेंगे जहां क्या होता है, जूट के लिए सुटेबल वेदर या क्लाइमेट हो. देन रॉ मटेरियल, जैसा मैंने बताया जूट की इंडस्ट्री को ओपन करना है तो रॉ मटेरियल के रूप में जूट अगर वहां अवेलेबल है तो ही इंडस्ट्री को वहां लोकेट करना बेनिफिशियल होगा या बेनिफिट वाली बात होगी. अदरवाइज आप ट्रांसपोर्ट में इतना पैसा खर्च कर चुके होंगे कि आपने जहां इंडस्ट्री को लोकेट किया है अगर वहां पर जूट ग्रो नहीं होता है तो कोई मतलब नहीं निकलेगा. देन द नेक्स्ट, पावर. Power mean electricity. When we talk about the electricity, most of the manufacturing industries they are generated by the generated power by the electricity, or we can say मोस्ट ऑफ द इंडस्ट्रीज जो रन होती है वो इलेक्ट्रिसिटी के थ्रू रन होती है. डीजल, पेट्रोल या कोल को लेकर हम बात करते हैं वहां भी इंडस्ट्रीज को चलाने के लिए उनको काम में लिया जाता है. लेकिन पावर के लिए जब हम बात करते हैं तो जहां सुटेबल क्राइटेरिया होगा या जहां हम बात करें सुटेबल पावर की सप्लाई होगी वहीं पे इन्हें लोकेट किया जाएगा. देन द लेबर. लेबर को लेकर हम बात करते हैं तो चीप लेबर की अवेलेबिलिटी इंपॉर्टेंट पार्ट होता है किसी भी इंडस्ट्री को लोकेट करने के लिए. देन ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज, चाहे वो रोडवे हो, चाहे वो रेलवे हो, चाहे वो डिफरेंट काइंड्स ऑफ वाटरवे हो, ये सब इंपॉर्टेंट रखते हैं किसके लिए, किसी भी फैक्ट्री की लोकेशन के लिए. व्हेन मार्केट को लेके बात की जाए, फिनिश गुड्स को सप्लाई करने के लिए, इंपोर्ट एक्सपोर्ट्स के लिए या रॉ मटेरियल को परचेज करने के लिए मार्केट को लोकेट होना या आसपास में अवेलेबल होना बहुत जरूरी होता है. मार्केट होगा तभी आप रॉ मटेरियल को फिनिश गुड्स में चेंज करने के बाद वहां सेल आउट कर सकते हैं. देन गवर्नमेंट एड और ग्रांट्स. गवर्नमेंट के द्वारा दी जाने वाली कई तरह की डिफरेंट सब्सिडीज वो एक इंपॉर्टेंट पार्ट होता है किसी भी कंपनी के लिए, किसी भी इंडस्ट्री के लिए वहां लोकेट करने के लिए. देन इंटरनेट एंड द टेली कम्युनिकेशन एक्सेस. जब हम बात करते हैं कम्युनिकेशन एक्सेस को लेकर के या कम्युनिकेशन को लेकर तो कंपनीज के लिए सबसे बेटर यह होगा कि वहां से ट्रांसपोर्ट के साथ साथ कम्युनिकेशन भी डेवलप्ड हो. मतलब वहां पर टेलीफोन को लेकर हम बात करें, इंटरनेट को लेकर हम बात करें, बैंकिंग सेक्टर को लेकर हम बात करें तो उनका डेवलप्ड होना बहुत जरूरी होता है. देन द लास्ट, पर्सनल प्रेफरेंस. अब इसके बाद जो लास्ट पॉइंट बचता है वो डिफरेंट काइंड ऑफ इंडस्ट्रीज के लिए किस तरह का लोकेशन सूटेबल होता है, ये डिपेंड करता है इंडस्ट्री ओपन करने वाले या इंडस्ट्रीज किस तरह का है उसके ऊपर. तो ये आया है आपका पर्सनल प्रेफरेंस के अंदर. नाउ इट इज रेयरली पॉसिबल टू फाइंड ऑल दीज फैक्टर्स अवेलेबल एट वन प्लेस. अब यहाँ कुछ फैक्टर भी लिखे हमने देखे हैं तो कुछ रीजन भी बताए हैं कि क्या ऐसा पॉसिबल है कि सारे के सारे फैक्टर्स एक ही जगह पर लोकेट हो.
नॉट पॉसिबल। और यहां मेंशन भी किया है मैंने that it is rarely possible to find all these factors available at one place. Thus, industrial location complex in nature. थोड़ा बहुत हमें ऐसा नहीं कि सारे के सारे फैक्टर्स जो रिस्पॉन्सिबल है फॉर द लोकेशन ऑफ एन इंडस्ट्री वो अवेलेबल हो, बट कहीं ना कहीं हमें कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है। दैट्स व्हाई इट इज कॉम्प्लेक्स इन नेचर। देन द की टू डिसीजन ऑफ द फैक्ट्री लोकेशन इज द लीस्ट कॉस्ट। और इसके लिए हमने क्या किया कि कहां सबसे कम खर्चा आ रहा है कंपनी को लोकेट करने में, वही सबसे सुटेबल पार्ट होता है फॉर द लोकेशन ऑफ कंट्री। देन नेक्स्ट, अब जो हम बात करने वाले हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग द लोकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज। जैसा मैंने भी आपसे बात किया कि किस किस तरह की किस किस तरह के फैक्टर्स जो है रिस्पॉन्सिबल होते हैं किसी भी कंपनी या इंडस्ट्री की लोकेशन के लिए, तो इफेक्ट क्या पड़ता है उनका, उसको लेकर हम बात करने वाले हैं। Like there are the some factors those are responsible for the location of industries, and what are the effect, or we can say that how they are responsible for the location. So there are the some many factors like the transport, like the land, like the power, raw material, labor, capital, or the market. So when we talk about the factors affecting the location of industries, they are availability of raw material, land, water, labor, power, or we can say the electricity, capital, transport, and the markets. Industries are situated where some or all these factors are easily available. कहीं भी इंडस्ट्री को लोकेट करना है तो लैंड, लेबर, वाटर, इलेक्ट्रिसिटी, मार्केट, ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन, ये कुछ ऐसे फैक्टर्स होते हैं जिनका होना बहुत जरूरी होता है। Sometimes the government provides incentives like the subsidies, power, like the lower transport cost and other infrastructure so that industries may be located in the backward areas. हम कई बार क्या करते हैं इंडस्ट्रियल लोकेशन को अलग से, या हम क्या करते हैं डिफरेंट काइंड्स ऑफ जो लोकेशंस होती है, जो रिमोट एरियाज होते हैं, हमने बात भी की थी भी लास्ट पॉइंट के अंदर, तो उनको डेवलप करने के लिए बैकवर्ड एरियाज के अंदर क्या करते हैं गवर्नमेंट सब्सिडी प्रोवाइड करती है ताकि वहां उनको डेवलप करके इजीली इंडस्ट्रीज को डेवलप किया जा सके। स्पेशल इकोनॉमिक जोन आप उसे बोल सकते हैं सेज के रूप में। देन इंडस्ट्रियलाइजेशन ऑफन लीड्स टू डेवलपमेंट एंड ग्रोथ ऑफ टाउन्स एंड सिटीज। और हम बात करते हैं इंडस्ट्रियलाइजेशन को लेकर के, जब कहां पर या किसी भी जगह पर इंडस्ट्रीज को लोकेट किया जाता है तो उसकी वजह से उसके आसपास वाले एरियाज का डेवलप होना या डेवलप होने में पॉसिबिलिटीज ज्यादा बनती है। देन आइडियल लोकेशन फॉर एन इंडस्ट्री, क्या क्या चीज का होना जरूरी होता है। देखिए कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन एट द साइट, कि वहां खर्चा कितना आ रहा है। जब हमने कॉम्प्लेक्स इन नेचर को लेके बात किया था तो मैंने ये कहा था कि किसी भी इंडस्ट्री को लोकेट करने के लिए लीस्ट इन कॉस्ट, या हम बात करें कि सबसे कम पैसा का खर्च हो रहा है वहीं पे कंपनी को लोकेट किया जाएगा या इंडस्ट्री को लोकेट किया जाएगा। डिसीजन टू लोकेट इंडस्ट्री एट साइट डिसाइड करता है पर्सनल प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग कि क्या वहां पर सुटेबल वेदर कंडीशंस है या नहीं, क्लाइमेट सुटेबल है या नहीं, पावर सप्लाई या लैंड या लेबर अवेलेबल है या नहीं। Then cost of distribution of production, when we talk about the transport, about the market that are suitable for the production or not, or for the distribution of the production is available or not, then there will be the third point, cost of distribution of production. Now the next, cost of obtaining raw material at the site. It is the first and the very important part for the location of an industry, that if the raw material is available then it will be good for the industries or for the location of industry, and it is the most important part for the location of an industry. Now the next, let's talk about the what are the inputs and what are the outputs in the in a manufacturing industry or in a company. So when we talk about the inputs like the raw materials and the components parts, like the production को लेके हम बात करने वाले हैं, land, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर्स एंड द इंफ्रास्ट्रक्चर, दीज आर द इनपुट्स जो हम लगाते हैं। पैसा हमने लगाया, कैपिटल को लेके हम बात कर रहे हैं, लेबर जो वहां काम करने वाले हैं, रॉ मटेरियल जो हम बार बार खरीद के बार बार वहां लगा रहे हैं, उससे हम क्या बोलेंगे इनपुट। अब इस इनपुट को हमने क्या किया, देखिए सारी की सारी चीजें एक जगह नहीं मिलती है। हमें कहीं पे इंडस्ट्री को हमने लोकेट किया है तो वहां लैंड जो अवेलेबल होगा वहां हम पैसा भी लगा रहे हैं, लेकिन लेबर को हमें कहीं और से लाना पड़ेगा, या हो सकता है रॉ मटेरियल को हम एक साथ एक ही जगह पर रॉ मटेरियल तो नहीं होगा, तो हमें परचेज करके उसे कहीं ना कहीं ट्रांसपोर्ट के थ्रू फैक्ट्री तक पहुंचाना होगा या फैक्ट्री साइट तक भेजना होगा।
देन हमने क्या किया, इनपुट्स को ट्रांसपोर्ट के थ्रू कहां पहुंचाया, फैक्ट्री साइड के यहां पर। फैक्ट्री में जाने के बाद क्या किया हमने, थ्रू द मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस इसे किस में चेंज किया, फिनिश गुड्स के अंदर। सो फिनिश गुड्स जो बनने वाला है आपका, या गुड्स जो बनने वाला है, दैट विल बी कॉल्ड आउटपुट। अब वो क्या निकला आपका, आउटपुट। अब आउटपुट को हम क्या करेंगे, हमारे पास तो रखेंगे नहीं, उसे सेल आउट करने के लिए मार्केट के अंदर भेजा जाएगा थ्रू द प्रोसेस ऑफ ट्रांसपोर्ट। अब ट्रांसपोर्ट से हमने क्या किया, जो भी चीज हमने बनाई थी कहां, इंडस्ट्री के अंदर, उसे ट्रांसपोर्ट के थ्रू कहां भेजा, मार्केट तक। अब मार्केट में हम क्या करेंगे, उससे जो हमारे पास फिनिश गुड्स है उसको हम सेल करेंगे, और सेल करने के बाद क्या मिलेगा हमें, मनी। और मनी मिलने के साथ ही हम क्या करेंगे, इस मनी से वापस से रॉ मटेरियल, लेबर या फिर इंफ्रास्ट्रक्चर को चेंज करने में या मशीन को डेवलप करने में पैसा फिर से लगाएंगे। दिस इज द प्रोसेस। What is the mean of input? What is the mean of output? There will be a question of MCQs type, multiple choice question में आपको ऐसा क्वेश्चन देखने को मिल सकता है in the board examination. Now the next, system approach to industrial geography, inputs, manufacturing, then outputs. जो अभी डिस्कस किया हमने, लाइक रॉ मटेरियल को लेके मैंने बात की, लैंड को लेके मैंने बात किया, लेबर को लेके मैंने बात किया, कैपिटल को लेके मैंने बात किया, दैट विल बी काउंट इनटू द इनपुट्स। वो हमने कहां काउंट किए, इनपुट्स। इनपुट्स को मैंने ट्रांसपोर्ट के थ्रू कहां पहुंचाया, कहां मैंने भेजा, उन्हें मैंने भेजा फैक्ट्री साइट्स के पास। वहां मैंने क्या किया, बाय द प्रोसेस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग मैंने वहां उसे फिनिश गुड्स में चेंज किया, एंड आफ्टर चेंजिंग इनटू द फिनिश गुड्स मैंने क्या किया, थ्रू द ट्रांसपोर्ट मैंने उसे कहां पहुंचाया, मार्केट के अंदर। और मार्केट पहुंचाने के बाद में जो फिनिश गुड्स को मैंने यूज में लिया है उसे मैंने क्या बोला है, आउटपुट। और उस आउटपुट के थ्रू मार्केट में जब उसे सेल आउट किया गया, दैट विल बी कॉल्ड, या उसके थ्रू में क्या मिलने वाला है, मनी। और उस मनी से फिर से हम क्या खरीदेंगे, इनपुट्स। ये प्रोसेस है जो कंटिन्यू चलती रहेगी। मेनी इंडस्ट्रीज टेंड टू कम टुगेदर, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर द 1 मार्क्स, और ये हमेशा आता रहा है बोर्ड एग्जाम के अंदर। और इसका डेफिनेशन एग्लोमेरेशन इंडस्ट्रीज को लेकर हम बात करने वाले हैं, कई बार एग्जाम में पूछी गई है, तो ये इंपॉर्टेंट पार्ट में क्वेश्चन आता है। और जब हम वन शॉट वीडियो में बात करते हैं तो ऐसे क्वेश्चंस को आपको अंडरलाइन कर लेना चाहिए, ऐसे क्वेश्चन को आपको फोकस भी करना चाहिए, ध्यान देना चाहिए। क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एग्लोमेरेशन इकोनॉमीज, मतलब क्या है, एक साथ जुड़ना, कॉम्बिनेशन, संगठन बनाना, ग्रुप बनाना। कैसे, मेनी इंडस्ट्रीज टेंड टू कम टुगेदर टू मेक यूज ऑफ द एडवांटेज ऑफर्ड बाय द अर्बन सेंटर नॉन एज एग्लोमेरेशन इकोनॉमीज। जब एक साथ में ऐसे कोई लोकेशन के अकॉर्डिंग हम बात कर रहे हैं जहां कोई सब्सिडी मिलता है, या डिफरेंट काइंड ऑफ इंडस्ट्रीज ऑलरेडी लोकेटेड होती है, तो आने वाली नई कंपनीज या नई इंडस्ट्री भी वहीं पे ओपन की जाती है, और इसे हम बोलते हैं एग्लोमेरेशन इकोनॉमीज। क्लियर? देन cities provide markets and also provide services such as banking, insurance, transport, labor, consultants and the financial advice etc. to the industries. And यहाँ हमने गवर्नमेंट एड्स एंड ग्रांट्स को लेके बात किया था, जिसकी वजह से सब्सिडी को लेके हम बात करते हैं या डिफरेंट काइंड ऑफ लोकेशन को लेके हम बात करते हैं, तो इजी वे के अंदर इंडस्ट्रीज को डेवलप किया जा सकता है। क्लासिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज जो भी एक इंपॉर्टेंट पार्ट है, यहाँ डिफरेंट काइंड्स ऑफ इंडस्ट्रीज को लेके बात की जाने वाली है और उनका क्लासिफिकेशन किस तरीके से किया गया है। फर्स्ट ऑफ ऑल व्हेन वी टॉक अबाउट द क्लासिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज, तो यहाँ मैंने सबसे पहले डेवलप किया है, इसको या डिफाइन किया है ऑन द बेसिस ऑफ रॉ मटेरियल, जो हमें मिलने वाला है नेचर से या हमें मिलने वाला है मिनरल्स के थ्रू। नेचर से ही बात करेंगे। On the basis of raw material, there are the two types of industries. The first is agro-based and the second is mineral-based. Agro-based means जो हमें एग्रीकल्चर प्रोडक्शन से मिलने वाला है। मिनरल-based मतलब जो हमें एग्जीक्यूशन या आफ्टर जो हम बात करते हैं क्योरिंग को लेकर, माइनिंग को लेकर, तो जो मिनरल्स हमें मिलने वाले हैं वहां यहाँ बात की जाएगी। एग्रो-बेस्ड इंडस्ट्रीज के अंदर जो हम डिस्कस करते हैं या जो मेन हमारी इंडस्ट्रीज है, लाइक द कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री, like the woolen industry, like jute, silk textile industry, like the rubber industry, sugar industry, tea or coffee industry, or we can say the plantation industries. ये सब यहाँ काउंट होंगी। When we talk about the mineral based industries like the iron and steel industry, like the cement industry, aluminum industry or the petrochemical industries etc. These are related with the mineral. Secondly, according to their main role, when we talk about the main role of the industries, then there are the two types again. One is basic or the key industries and the second is consumer industries that are the consumed directly by the consumer, that will be counted into the consumer industries. And when we talk about the key
terms industry or the basic industry, the industries those are make the tools or the machines for the different kind of industries. That will be count into the basic or the key industry. Like define करते हैं, these industries supply their product or the raw material to manufacture other goods or the other tools or the machines. Like आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री को लेकर हम बात करते हैं, तो यहां पर आयरन और स्टील इंडस्ट्री के अंदर आपको एक मशीन लोकेट करनी होगी, आपको फर्नेस, ब्लास्ट फर्नेस लगाना होगा, आपको आयरन को पुट करने के लिए मशीन लगानी होगी. सो ये मशीन किससे बनने वाली है? आपकी आयरन से. तो ऐसा नहीं है कि आपने आयरन को या मिनरल्स को निकाला आयरन ओर के थ्रू, ठीक, सॉरी, आयरन ओर को निकाला मिनरल के अंदर से और क्या किया, उसे डायरेक्टली यूज करना स्टार्ट कर दिया. नहीं, हम ब्लास्ट फर्नेस को लेके बात करते हैं, हमें आयरन को रिफाइन करना पड़ेगा, आयरन ओर को रिफाइन करना पड़ेगा, पिग आयरन को एक्साइट करना पड़ेगा, उसके अंदर जो स्मेल्टिंग आयरन होगा उसको हम अलग से यूज करेंगे. तो यहाँ कहीं ना कहीं इस पूरी प्रोसेस के अंदर हमें डिफरेंट काइंड ऑफ मशीन्स का यूज करना पड़ेगा. तो वो मशीन किससे बनने वाली है? आपकी बनने वाली मिनरल से ही है, लेकिन उसका यूज अलग है. ठीक है, तो टूल्स और मशीन जो बनाई जा रही है उसे हम किसमें काउंट करेंगे? बेसिक और की इंडस्ट्रीज के अंदर. लेकिन मोबाइल फोन को लेकर हम बात करने वाले हैं, तो मोबाइल फोन के अंदर सिम कार्ड जो लगता है वो कोई अलग कंपनी बनाती है, अलग इंडस्ट्री बनाती है. मेमोरी कार्ड जो है वो कोई अलग इंडस्ट्री बना रही है. उसका कैमरा कहीं और मैन्युफैक्चर हो रहा है. उसकी जो बॉडी है, एल्यूमिनियम है या सिलिकॉन है या जो भी आप यूज कर रहे हैं, प्लास्टिक बॉडी जो है वो कहीं और बनने वाला है. उसके कवर कहीं और बनने वाले हैं, उसके बटन्स जो हैं वो कहीं और बनेंगे. सो दिस विल बी कॉल्ड बेसिक और द की इंडस्ट्री. लेकिन उससे पूरा जब हम बात करेंगे असेंबल्ड किया जाएगा तो वो क्या होगा? आपका बेसिक और की इंडस्ट्री में काउंट कर लिए जाएंगे, जो उसके पार्ट्स बन रहे हैं डिफरेंट काइंड. देन कंज्यूमर इंडस्ट्रीज. कंज्यूमर इंडस्ट्री जो डायरेक्टली आपके यूज में आ रही है, लाइक हमने शुगर का प्रोडक्शन किया, शुगर केन का, शुगर केन से हमने क्या किया? जेगरी बनाया या शुगर बनाया, उससे हम डायरेक्टली यूज में ले रहे हैं. लाइक दिस इंडस्ट्री प्रोड्यूस गुड्स विच आर डायरेक्टली यूज बाय द कंज्यूमर, लाइक शुगर, लाइक पेपर, इलेक्ट्रॉनिक्स और सोप और एक्सेट्रा. Then on the basis of capital investment, when we talk about the capital investment, पैसे को लेकर बात की गई है. डिफरेंट काइंड्स, दो तरह के हम बात करने वाले हैं. एक होगा आपका स्मॉल स्केल इंडस्ट्री और सेकंड होगा आपका लार्ज स्केल इंडस्ट्री. When we talk about the small scale industry, जहां पर आपका कॉस्ट लेस देन 1 करोड़ आने वाला है या इन्वेस्टमेंट को लेकर हम बात कर रहे हैं, वो लेस देन 1 करोड़ अगर होगा आपका, that will be count into the small scale industry. मोस्टली हम यहाँ लोकेशन को लेकर बात करते हैं, तो ये स्मॉल एरियाज के अंदर लोकेट करते हैं और यहाँ पर काम करने वाले वर्कर्स का नंबर भी कम होता है. सो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री, इफ द इन्वेस्टेड कैपिटल इज अप टू 1 करोड़, मैंने कहा लेस देन 1 करोड़ की हम बात कर सकते हैं, या अप टू हम कहा जाएंगे 1 करोड़ तक ही जाएंगे, देन द इंडस्ट्री विल बी कॉल्ड स्मॉल स्केल इंडस्ट्री. देन द सेकेंड लार्ज स्केल इंडस्ट्री, When we invest more than 1 करोड़, अगर हम 1 करोड़ से अधिक का पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं किसी कंपनी के लिए, किसी इंडस्ट्री को लोकेट करने के लिए, then that will be called large scale industry. Now the next, on the basis of ownership, जहां हम 4 टाइप को लेके बात करेंगे: पब्लिक सेक्टर, प्राइवेट सेक्टर, जॉइंट सेक्टर और द कोऑपरेटिव सेक्टर. पब्लिक सेक्टर जो गवर्नमेंट के रूल्स और रेगुलेशंस को फॉलो करता है कंप्लीटली और जो गवर्नमेंट के रूल में आती है या गवर्नमेंट रन करती है, ऑपरेटेड बाय द गवर्नमेंट, that will be count into the public sector, like SAIL, like BHEL, like the ONGC. यहां हमने SAIL, BHEL और ONGC इन्हें काउंट किया है, जो टोटली किसके अकॉर्डिंग रन करती है? गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग. देन द सेकंड प्राइवेट सेक्टर इंडस्ट्रीज, जहां हम बात करने वाले हैं इंडिविजुअली या 2 ग्रुप के द्वारा चलाई जाने वाली कंपनी को लेकर. These industries are owned and operated by individual or a group of individuals, like Tisco, Tata, Iron Steel Company Organization को लेकर हम बात कर रहे हैं, Reliance, Mahindra, etc. Then joint sector. अब joint sector की बात आती है तो यहाँ क्या ध्यान रखना है आपको? These industries are jointly owned by the government and the individual or a group of individuals. यहाँ गवर्नमेंट का पैसा भी लगने वाला है और यहाँ इंडिविजुअल या एक ग्रुप का पैसा भी लगने वाला है. मतलब गवर्नमेंट सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर दोनों मिलकर काम करते हैं, तो इसे हम क्या बोलेंगे? जॉइंट सेक्टर. लाइक इसका एग्जांपल दिया है ऑयल इंडिया लिमिटेड. एग्जांपल सेम टू सेम एनसीईआरटी से लिए गए हैं, इसलिए क्वेश्चन बाहर से नहीं आएगा. और एनसीईआरटी से अगर ऐसा क्वेश्चन देखने को मिलता है तो आपको ये जो एग्जांपल दिए गए हैं वो याद करने हैं, और यहां से क्वेश्चन बाहर नहीं आएगा तो आप इजी वे में मार्क्स ऑब्टेन कर सकते हैं. देन फोर्थ नंबर इज कोऑपरेटिव सेक्टर. व्हेन वी टॉक अबाउट द कोऑपरेटिव सेक्टर, यहां क्या ध्यान रखना है? यहां जो इन्वेस्टमेंट करने वाले हैं वो कौन कौन करेंगे? देखिए, दीज इंडस्ट्रीज आर ओन्ड बाय एंड ऑपरेटेड बाय द प्रोड्यूसर्स और द सप्लायर्स.
या तो कौन, इसको दोनों को लेके बात की गई है। यहां पर प्रोड्यूसर्स की बात भी आ रही है और सप्लायर की बात भी आ रही है ऑफ रॉ मटेरियल, जो बनाते हैं या जो प्रोड्यूस करते हैं, दोनों ने यहां पर सहयोग किया है। मींस जैसे कि हम बात कर रहे हैं एक बटर बनाने वाली इंडस्ट्री का या फूड मिल्क फूड बनाने वाली इंडस्ट्री का, तो यहां जो मिल्क सप्लाई करने वाले हैं वर्कर्स जो हैं उनको भी काउंट किया गया है, और जो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री के थ्रू किसमें चेंज कर रहे हैं, उससे मिल्क पैकेट बना रहे हैं, उन्हें भी काउंट किया गया है। तो दोनों का इन्वेस्टमेंट होता है एक साथ, तो इसे हम क्या बोलते हैं, कोऑपरेटिव सेक्टर। लिखा है मैंने, यहां ऑपरेट कौन करता है इन्हें, प्रोड्यूसर्स और द सप्लायर्स ऑफ रॉ मटेरियल, वर्कर्स और द बोथ। द रिसोर्सेज आर पूल्ड बाय ईच स्टेक होल्डर एंड प्रॉफिट्स और लॉसेज। यहां पर जो लॉस होंगे, जो प्रॉफिट होगा, उससे बराबर की हिस्सेदारी के थ्रू या जो भी इनका शेयर होगा उसके अकॉर्डिंग डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है। नेक्स्ट, अब जो हम बात करने वाले हैं वो डिफरेंट काइंड ऑफ इंडस्ट्रीज को लेकर हम बात करने वाले हैं टाइप्स पढ़ने के बाद में। और सबसे पहला यहां जो हमने बात किया है वो है टेक्सटाइल इंडस्ट्री, कपड़े को लेकर बात की जाने वाली है, कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री को लेकर हम बात कर रहे हैं। फिर इसके बाद हम जूट को लेकर हम बात करेंगे। सबसे पहले जो हम बात करने वाले हैं टेक्सटाइल इंडस्ट्री के अंदर, इट इज द ओनली इंडस्ट्री इन इंडिया which is self-reliant and complete in the value chain, स्टार्टिंग से लेके एंडिंग, मतलब रॉ मटेरियल से लेकर फिनिश गुड्स तक हमें दूसरे के ऊपर डिपेंड नहीं होना पड़ता है। सेल्फ रेलिएंट है, मतलब कि हम खुद इंडिया के अंदर इतने कैपेबल है, इतने सक्षम है कि स्टार्टिंग से लेकर एंडिंग तक की प्रोसेस के अंदर हमें किसी का दूसरे कंट्री के ऊपर डिपेंड नहीं होना पड़ता है। काफी ज्यादा मतलब इंपॉर्टेंस ही रहा है इंडिया के कॉटन टेक्सटाइल का, बाहर भी, विदेश के अंदर भी। तो यहां लिखा हुआ है फर्स्ट पॉइंट पे मैंने, इट कंट्रीब्यूट्स टू इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन एंड द फॉरेन एक्सचेंज अर्निंग्स। समथिंग अबाउट द 14% ऑफ टोटल इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन जो हम बात कर रहे हैं, पूरे इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन के अंदर कितना परसेंट टेक्सटाइल कवर करता है, 14%, एंड द कंट्रीब्यूशन इज 4% इन जीडीपी ऑफ इंडिया। एम्प्लॉयमेंट जनरेशन इज समथिंग अबाउट 35 मिलियन। जब हम बात करते हैं कितने लोग एंगेज हैं टेक्सटाइल इंडस्ट्री में, समथिंग अबाउट 35 मिलियन, सेकंड लार्जेस्ट आफ्टर एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर के बाद अगर क्वेश्चन आता है कि विच इज द सेकंड लार्जेस्ट इंडस्ट्री इन आवर कंट्री और द सेकंड लार्जेस्ट ऑक्यूपेशन प्रोवाइड इंडस्ट्री इन आवर कंट्री इंडिया, तो यहीं पे आने वाला है आपका सेकंड लार्जेस्ट आफ्टर द एग्रीकल्चर। देन ओनली इंडस्ट्री इन द कंट्री विच इज सेल्फ रेलिएंट लाइक फ्रॉम रॉ मटेरियल टू फिनिश गुड्स, जो मैंने बताया आपको अभी। अब देखिए क्या होता है इस इंडस्ट्री के अंदर, सबसे पहले हम फाइबर प्रोडक्शन करेंगे, किससे, रॉ फाइबर से। देन फ्रॉम द स्पिंडल्स और स्पिनिंग प्रोसेस के थ्रू हम क्या करेंगे, इसे यार्न में चेंज करेंगे। अब यार्न जो थ्रेड हमारे पास बन गया है या आ गया है, उसको हम क्या करेंगे, बाय द प्रोसेस ऑफ वीविंग एंड नीटिंग वी विल चेंज इट इनटू द फैब्रिक, एंड आफ्टर गेटिंग द फैब्रिक बाय द प्रोसेस ऑफ डाइंग एंड फिनिशिंग वी विल चेंज इनटू अ गारमेंट, और गारमेंट को हम क्या करेंगे, मार्केट के अंदर सेल आउट कर देंगे। दीज आर द प्रोसेस फॉर द मेकिंग ऑफ टेक्सटाइल इंडस्ट्री। और ये जो प्रोसेस है टेक्सटाइल इंडस्ट्री वाली, यहां से कई बार क्वेश्चन आया बोर्ड एग्जाम के अंदर। हमने क्या किया, गारमेंट को अंदर, गारमेंट मैन्युफैक्चर से वापस क्या किया, इसे सेल आउट कर दिया आगे की तरफ, और वहां से हमने अर्निंग की, और अर्निंग के थ्रू हमने क्या किया है, अपना प्रॉफिट ले लिया है। देन नेक्स्ट, कॉटन टेक्सटाइल को लेकर हम बात करने वाले हैं। कंट्रीब्यूशन क्या रहा है, कितना जीडीपी के अंदर कंट्रीब्यूशन है। जब हम बात करते हैं 1946 मील्स अकॉर्डिंग टू नवंबर 2011 एस्टिमेशन को लेकर बात कर रहा हूं मैं, यहां पर कितनी मील्स थी, 1946। डाटा आपसे नहीं पूछता एग्जाम के अंदर वो, क्योंकि डाटा चेंज हो चुका है। अभी के लेके हम बात करते हैं अगर, तो 2021 के अकॉर्डिंग ये डाटा आपको चेंज मिलेगा। सो इतना इस पे फोकस नहीं करना है। बट जब बात आती है इसके आगे जस्ट जो लिखा हुआ है कि सबसे अधिक कॉटन इंडस्ट्रीज कहां लोकेटेड है या कहां पर एस्टेब्लिश की गई, देन द आंसर विल बी महाराष्ट्र एंड गुजरात। सुटेबल लोकेशन को लेकर हम बात कर रहे थे, डेवलपमेंट को लेकर हम बात कर रहे थे, तो आपके यहां पर कॉटन इंडस्ट्री में दो स्टेट्स के नाम आए हैं। द फर्स्ट इज महाराष्ट्र एंड सेकंड इज गुजरात, दैट आर मोर सुटेबल फॉर द लोकेशन ऑफ कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री। देन द नेक्स्ट, India has the second largest installed capacity of spindles in the world. वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट है कि अगर यान को चेंज करना है या यान बनाना है फाइबर से, फैब्रिक से, तो सबसे ज्यादा कहां पर सेकंड लार्जेस्ट इंस्टॉल्ड कैपेसिटी रखता है, कौन, इंडिया, एंड विद 43.13 मिलियन स्पिंडल्स अकॉर्डिंग टू द एस्टिमेशन ऑफ 2011-12 आफ्टर चाइना। किसके बाद हम बात कर रहे हैं, चाइना के बाद। सेकंड नंबर पे आता है स्पिंडल्स की मेकिंग के अंदर या प्रोसेस के अंदर, कौन, इंडिया, किसके बाद में, चाइना के बाद। इंडिया ट्रेड इन गारमेंट्स
इज ओनली 4% ऑफ द वर्ल्ड्स टोटल। लेकिन जब हम बात करते हैं फिनिश गुड्स को लेकर, जब आते हैं स्पिंडल्स को लेकर, तो यहां सेकंड रैंक पे था, लेकिन जब बात आई फिनिश गुड्स को लेकर या गारमेंट्स को लेकर तो इंडिया काफी पीछे चला गया। ये बहुत बड़ी बात है। क्या करना है देखिए आप, स्पिनिंग मींस फाइबर आर ट्विस्टेड टू फॉर्म यार्न। जब हम बात करते हैं स्पिनिंग को लेकर के, मैंने बताया स्पिंडल्स के थ्रू क्या बनाना, उसका यार्न बनाना, किसका, फाइबर का। तो आगे बात की जा रही है मोस्टली इंडस्ट्रीज कहां पर लोकेटेड है, कंसंट्रेट इन महाराष्ट्र एंड गुजरात। उसके लिए स्पिंडल्स की भी कहां बनते हैं, स्पिनिंग भी ज्यादा कहां होती है, महाराष्ट्र और गुजरात के अंदर। इंडिया हैज लार्ज शेयर इन द वर्ल्ड ट्रेड ऑफ कॉटन यार्न अकाउंटिंग फॉर 1/4 ऑफ द टोटल ट्रेड। अगर हम बात करें समथिंग अबाउट 25% एक्सपोर्ट कौन करता है यार्न का, इंडिया। विविंग डिसेंट्रलाइज इन इंडिया। अगर हम बात करें विविंग को लेकर, मींस गारमेंट को बनाने को लेकर हम बात करते हैं, फैब्रिक के अंदर चेंज करने को लेकर, तो ये जगह जगह बटा हुआ है। इतना हम ये नहीं कहेंगे कि इसका कंट्रीब्यूशन ज्यादा है विविंग के अंदर। रॉ मटेरियल के रूप में हम बात करते हैं अगर, तो सीधा डायरेक्टली मैं आता हूं फाइबर या फैब्रिक से क्या बनाना, या जो आपके पास धागा था उसको यार्न में चेंज करने के लिए स्पिंडल्स का बहुत ज्यादा यूज होता है इंडिया में। अब इंडिया से जो एक्सपोर्ट होता है किसका, कॉटन टेक्सटाइल का, उसके लिए कौन कौन से इसको खरीदने या परचेज करने वाले मार्केट्स अवेलेबल है इंडिया के बाहर, वो है यूएसए, यूके एंड रशिया। देन द नेक्स्ट, जूट टेक्सटाइल इंडस्ट्री। देखिए जूट को लेकर हम बात करें, बिफोर 1947 पूरे वर्ल्ड के अंदर इंडिया का नाम था, लेकिन एज वी नो दैट 1947 के बाद इंडिया दो देश में डिवाइड हो गया। एक को जो नया देश बना उसका नाम पाकिस्तान है, और साथ में ही एक ईस्टर्न पाकिस्तान बना जो हम प्रेजेंट टाइम में बांग्लादेश बोलते हैं। तो मोस्ट ऑफ द टेक्सटाइल इंडस्ट्री जो थी जूट वाली, वो कहाँ चली गई, बांग्लादेश के अंदर। तो इसको लेकर जब हम बात करते हैं तो 1947 के अंदर अगर हम बात करें या इससे पहले की हम बात करें तो इंडिया काफी डेवलप्ड था, लेकिन इसके बाद इंडस्ट्रीज का डिसेंट्रलाइजेशन होने की वजह से या बट जाने की वजह से, डिवाइडेशन हो जाने की वजह से अब वो रैंक चली गई है। आइए बात करते हैं, इंडिया इज सेकंड प्लेस एज एन एक्सपोर्टर आफ्टर बांग्लादेश। इसलिए ये बांग्लादेश जो किसका पार्ट था, इंडिया का ही पार्ट था। तो ये कहां चला गया, इसके अंदर जूट मिल्स काफी सारी चली गई, तो इंडिया कौन से रैंक पे आया, सेकंड पे, और फर्स्ट पे कौन आ गया, बांग्लादेश। द फर्स्ट जूट मिल वाज सेट अप नियर कोलकाता इन 1859 एट रिसरा। अब यहां आपको याद रखना कि पहली जूट मिल कहां लगी, कोलकाता के अंदर कहां लगी, किस जगह लगी, रिसरा के अंदर। कब लगी, 1859 के अंदर। सेम यही क्वेश्चन कॉटन के अंदर भी आता है कि पहली कॉटन मिल कहां लगाई गई, मुंबई के अंदर इन 1854। याद रखने दोनों क्वेश्चन आपको। आफ्टर पार्टीशन इन 1947 द जूट मिल्स रिमेन्ड इन इंडिया, बट 3/4 ऑफ द जूट मिल्स, प्रोडक्शन को लेकर हम बात कर रहे हैं, समथिंग अबाउट 75% को लेकर बात की जा रही है, एरिया वेंट टू बांग्लादेश, अर्स्टवाइल ईस्ट पाकिस्तान, जिसे हम बोलते हैं पूर्वी पाकिस्तान या ईस्टर्न पाकिस्तान, जो 1971 के अंदर क्या बन गया, बांग्लादेश एक इंडिपेंडेंट कंट्री बना, जिसका नाम पाकिस्तान से हटा कर रख दिया गया, खुद अपना एक बांग्लादेश बना नया, termed as golden fiber. So there will be a question in the board exam that which fiber is known as the golden fiber. किसको बोलते हैं, जूट को। Most jute mills located near the Hooghly rivers. The reason behind it, क्वेश्चन आता है 3 नंबर का या 3 मार्क्स का क्वेश्चन आपको मिलने वाला है। क्या क्वेश्चन होगा, What were the reason that the most of the jute textile mills are located near the Hooghly rivers? आइए आंसर को लेकर हम बात कर लेते हैं। Reason, most jute mills located near the Hooghly river. Proximity of the jute producing area, सबसे अधिक जो proximity है या weather है, climatic conditions है, वो suitable कहाँ की है, हुगली रिवर के आसपास वाले एरिया की, या बंगाल और जो हम बात करते हैं अब आप गंगा ब्रह्मपुत्र रिवर को लेकर उस वाले एरिया के पास वाले एरिया की हम बात कर रहे हैं। एन एक्सपेंसिव वाटर ट्रांसपोर्ट, इजीली फैसिलिटी अवेलेबल है वाटर ट्रांसपोर्ट को लेकर, तो ज्यादा खर्चा नहीं आता है, दैट्स व्हाई जूट मिल को वहां एस्टेब्लिश किया गया। देन थर्ड नंबर, a good network of railways, roadways and the different kinds of transport for the export of raw material to the mills. हमें कहाँ का भेजना है या ट्रांसपोर्ट करना है रॉ मटेरियल को मिल्स तक, उसके लिए हमारे पास क्या है, डिफरेंट काइंड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट्स के मोड्स अवेलेबल है। देन abundant water for processing raw jute, रिवर से बड़ी बड़ी गंगा हुई, ब्रह्मपुत्र हुई, हुगली रिवर को लेकर हम बात कर रहे हैं, जिसकी वजह से वाटर अवेलेबल है प्रोसेसिंग किसके अंदर, रो जूट बनाने के लिए सबसे सूटेबल यही जगह मानी गई है। देन चीप लेबर फ्रॉम वेस्ट बंगाल एंड एडजॉइनिंग स्टेट्स लाइक द बिहार, उड़ीसा एंड यूपी, सब जगह से हमारे पास लेबर अवेलेबल है, वो भी एक चीप कॉस्ट के अंदर, तो यह लोकेशन जो है सूटेबल मानी गई है। देन द लास्ट पॉइंट इज कलकत्ता इज ए
large urban center, provides banking, insurance and the different kinds of port facilities for the export of jute goods. That's why Hooghly River को most suitable location माना गया है for the jute textile industry के लिए. Then the next, शुगर इंडस्ट्री को लेकर हम बात करने वाले हैं. सेकेंड लार्जेस्ट एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री. अगर हम बात करें एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री को लेकर, तो पहला हमने बात किया कॉटन टेक्सटाइल को लेकर, सेकेंडली हम बात करने वाले हैं किसको लेकर, शुगर को लेकर. इंडिया स्टैंड सेकंड एज ए वर्ल्ड प्रोड्यूसर आफ्टर ब्राजील. ब्राजील के बाद में सेकंड नंबर पे कौन आता है शुगर में, इंडिया. फर्स्ट प्लेस इन द प्रोडक्शन ऑफ गुड़. गुड़ को लेकर बात की जा रही है, जेगरी को लेकर, उसमें ये फर्स्ट प्लेस पर है. एंड खांड सारी को लेकर हम बात करें, रोज शुगर को लेकर, अनरिफाइंड शुगर, ब्राउन शुगर जिसे आप बोल सकते हैं, ब्राउन इन कलर में होता है. तो यहाँ पर ब्राउन शुगर वो नहीं है जो आप समझ रहे हैं. ब्राउन शुगर मतलब कलर में ब्राउन है इसलिए मैंने बोला है यहाँ पर, या सेम अनरिफाइंड शुगर भी बोल सकते हैं. ठीक है, आगे बात की गई है, दिस इंडस्ट्री इज सीजनल इन नेचर. सो आपको पता है कि जिस टाइम शुगर केन का प्रोडक्शन होगा उसी टाइम पर ज्यादा हम शुगर इंडस्ट्री को रन कर पाएंगे. सो यहाँ मैंने क्या बोला है, इसे सीजनल इंडस्ट्री लिया है. इट इज रियली सुटेड टू द कोऑपरेटिव सेक्टर्स, ऑलवेज रिड्यूस सुक्रोज कंटेंट. और अगर बात की जाए तो आपको पता है कि शुगर केन जब बेस्ट क्वालिटी का बनेगा या जब जिस समय शुगर केन का प्रोडक्शन ज्यादा होगा उसी समय इस इंडस्ट्री को रन किया जा सकता है. 60% मिल्स आर इन यूपी एंड बिहार. अब जब बात आई शुगर इंडस्ट्री को लेकर तो 60% कहां पर लोकेटेड है, यूपी और बिहार के अंदर, बिकॉज ऑफ द लोकेशन ऑफ द इंडस्ट्री. सुटेबल लोकेशन को लेकर हम बात करते हैं, फैक्टर्स को लेकर हम बात करते हैं, यूपी और बिहार के अंदर वो फैक्टर्स अवेलेबल है जो इस इंडस्ट्री के लिए क्या है, सबसे बेस्ट है. देन द नेक्स्ट, रीजन फॉर शिफ्टिंग ऑफ शुगर इंडस्ट्री इनटू द साउथ इंडिया. जब हमने बात की कि 60% कहां पर लोकेटेड है, यूपी और बिहार के अंदर, बट अब जो हम देख रहे हैं कि साउथ इंडिया में लगातार इंडस्ट्रीज डेवलप होती जा रही है. सो व्हाट वर द रीजन बिहाइंड इट, या व्हाट आर द मेन रीजन बिहाइंड इट, लेट्स टॉक. द केन, जो हम बात कर रहे हैं शुगर केन को लेकर, प्रोड्यूस्ड इन साउथ इंडिया हैज ए हायर सुक्रोज कंटेंट. यहां पर जो शुगर केन ग्रो होता है उसके अंदर सुक्रोज ज्यादा होता है और सुक्रोज की वजह से क्या बन पाता है आपका, शुगर या जेगरी. देन सेकेंड, कूलर क्लाइमेट ऑफ साउथ इंश्योर्स ए लार्ज क्रशिंग सीजन. अगर हम बात करें यहाँ का क्लाइमेट कैसा है, ठंडा है, जिसकी वजह से यहाँ पर बेटर क्वालिटी का शुगर केन और लॉन्ग टाइम के लिए शुगर केन बन पाता है. देन द नेक्स्ट, द कोऑपरेटिव्स आर मोर सक्सेसफुल इन द स्टेट्स लाइक द महाराष्ट्र. जो हम बात करते हैं कोऑपरेटिव सेक्टर को लेकर के, तो महाराष्ट्र ने ज्यादा कंट्रीब्यूट किया है इस सेक्टर के अंदर, या हम बात करें इस इंडस्ट्री के अंदर. इसीलिए अब जो है यूपी बिहार से इंडस्ट्रीज कहां की तरफ भी रन करने लगी है, साउथ इंडिया या महाराष्ट्र की तरफ भी. नेक्स्ट, mineral based industries. After discussing about the agro based industries, today let's talk about the different kind of industries, mineral based industries. जहां हम बात करने वाले हैं मिनरल्स को लेकर के और उनके ऊपर डिपेंड इंडस्ट्रीज को लेकर. Industries that use minerals and metals as raw materials are called mineral based industries. Let's discuss some industries that fall under this category. First is iron and steel industry. जो हम बात करते हैं बेसिक की इंडस्ट्री भी है ये, या ये डिफरेंट काइंड्स ऑफ टूल प्रोवाइड करती है डिफरेंट इंडस्ट्रीज के लिए. आयरन एंड स्टील इज द बेसिक इंडस्ट्री एज ऑल द अदर इंडस्ट्रीज. हैवी इंडस्ट्रीज को लेकर हम बात करें, मीडियम को लेकर हम बात करें, लाइट को लेकर हम बात करें, डिफरेंट काइंड ऑफ इंडस्ट्रीज डिपेंड होती है किसके ऊपर, आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री के लिए, फॉर मेकिंग द टूल्स और द मशीन्स. मशीन्स या टूल्स को लेकर हम बात करें तो मोस्टली या तो आयरन की बनी हुई होती है, स्टील की बनी हुई होती है और वो कहीं ना कहीं मैन्युफैक्चर की जाती है. देन इट इज considered as a heavy industry because all the raw materials as well as the finished goods are heavy and bulky, entailing heavy transportation cost. जैसा कि आपको पता है कि इसके अंदर जो रॉ मटेरियल होगा वह भी भारी होगा और इससे बनी हुई चीजें भी भारी होती है, वजन में हल्की नहीं होती है, इसीलिए इसे हमने क्या लिया है, हैवी इंडस्ट्री के अंदर काउंट कर लिया है. India is an important iron and steel producing country in the world, yet we are not able to perform to our full potential largely due to what were the reason behind it. The first is high cost and limited availability of coking coal, and second is lower productivity of labor, irregular supply of and the irregular supply of. अगर हम बात करें यहाँ पर जब लिखा हुआ है लो प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर, इरेगुलर सप्लाई, एक तो सप्लाई इरेगुलर है, लो प्रोडक्टिविटी है, लेबर जो है हमारे पास स्किल्ड लेबर नहीं है, और हमने बात की कोकिंग कोल का हमारे पास कम होना. ब्लास्ट फर्नेस के लिए कोकिंग कोल का रिक्वायरमेंट ज़्यादा होता है, इसी वजह से पावर सप्लाई को लेकर हम बात करें तो कहीं ना कहीं इसकी कमी होने से हम ज़्यादा डेवलप नहीं हो पाए.
अब क्या करना है, प्रोसेसिंग ऑफ मैन्युफैक्चरिंग ऑफ स्टील। देखिए यहाँ स्टील का प्रोसेस लिखा हुआ है, क्वेश्चन बहुत रेयर चांस के अंदर बोर्ड एग्जाम में यहाँ से आता है कि प्रोसेस को लिखना है आपको। सबसे पहले हमने क्या किया, मिनरल्स को पहुंचाया थ्रू द ट्रांसपोर्ट के थ्रू, कहां तक, इंडस्ट्रीज तक। आयरन ओर को मेल्टेड किया, लाइमस्टोन इसके अंदर मिलाया हमने, ठीक है, लाइमस्टोन इज फ्लक्सिंग मटेरियल विच इज एडेड, इसके अंदर हमने ऐड किया। स्टेक इज रिमूव्ड, और इसके अंदर से जो भी चीजें थी जो हमें काम में नहीं लेनी है उसको रिमूव किया गया। कोक इज बर्न टू द हीट द ओर, और हमने क्या किया, कोयले के साथ में इसे ब्लास्ट फर्नेस में जलाया इसके आयरन ओर को। देन अब जो हमारे पास आएगा आयरन पिघलने के बाद हम बोलेंगे पिग आयरन। मोल्टेन मटेरियल्स पोर्ड इनटू द मोल्ड्स कॉल्ड पिग्स। अब इससे हम जो क्या करेंगे, ये हमारे पास मोल्टन या पिघला हुआ जो लोहा निकला है उसे मोल्ड्स के अंदर क्या करेंगे, सांचे के अंदर रख लेंगे। देन इससे हम क्या करेंगे, शेपिंग मेटल्स रोलिंग करके, प्रेसिंग करके या कास्टिंग करके और फॉगिंग करके हम क्या करेंगे, इसे डिफरेंट शेप्स के अंदर रेडी करेंगे, तैयार करेंगे। एंड देन यहाँ पर जो आपका लिखा हुआ था स्टील को लेके मैं सीधा वहां पे आ गया हूं। यहां लिखा हुआ है पिग आयरन इज फर्दर प्यूरिफाइड बाय द मेल्टिंग एंड द ऑक्सीडाइजिंग द इम्प्योरिटीज। मैग्नीज, निकल एंड क्रोमियम को लेके हम बात करते हैं। इसके लिए आपको ये चीज इंपॉर्टेंट है कि कौन कौन सी जो हमारे पास यहाँ लिखा है किस किस तरह के चीजों को हम काम में लेते हैं, किसके लिए, स्टील मेकिंग के लिए। सबसे पहले हमने क्या किया, लाइमस्टोन को ऐड किया आयरन ओर के अंदर। जब हमारे पास पिग आयरन आया, पिग आयरन के अंदर हमने क्या क्या ऐड किया, हमने लिखा है मैग्नीज, निकल और क्रोमियम, इन तीनों को हमने ऐड किया। क्या बनाने के लिए, बेस्ट क्वालिटी का स्टील बनाने के लिए। और स्टील बनने के बाद उसे डिफरेंट काइंड्स ऑफ मोल्ड्स के अंदर हमने क्या किया, प्रेस करके या रोलिंग करके डिफरेंट काइंड्स ऑफ मेटल के अंदर या शेपिंग करके उसे चेंज करके रख लिया है अपने पास। देन नेक्स्ट, एल्यूमिनियम स्मेल्टिंग। Aluminum smelting is the second most important metallurgical industry in our country, India. It is used to manufacture aircraft, utensils and the wires. Bauxite is the raw material. Very important part from this, very important line from this part जो हम बात करते हैं, bauxite is the raw material used in the smelters. अगर हम बात करें how can we develop or how can we manufacture the aluminum, then there will be a most important जो आपको यूज होने वाला स्मेल्टर्स के रूप में वो क्या है, बॉक्साइट। एल्यूमिनियम स्मेल्टिंग हैज गेन्ड पॉपुलैरिटी एज ए सब्स्टिट्यूट फॉर स्टील, कॉपर, जिंक एंड लीड इन ए नंबर ऑफ इंडस्ट्रीज। अगर हम बात करें तो एल्यूमिनियम का भी बहुत ज्यादा यूज होने लगा है, ठीक है। इट एग्जिबिट्स द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज, लाइट इन वेट, हल्का होता है वजन में, रेसिस्टेंट टू कोरिजन, ए गुड कंडक्टर ऑफ हीट, मेलेबल है, बिकम्स स्ट्रॉन्ग व्हेन इट इज मिक्स्ड विद द अदर मटेरियल। या अगर आप बात करें तो ये टाइट हो जाता है, स्ट्रॉन्ग बन जाता है जब इसके अंदर दूसरे मटेरियल को ऐड किया जाता है। नाउ द नेक्स्ट, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज को लेके बात की गई है। ट्रांसपोर्ट की जब बात आती है तो हम काफी डेवलप हुए हैं रोड ट्रांसपोर्ट के अंदर या डिफरेंट काइंड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट्स के अंदर। अब यहाँ ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री को लेके बात की जा रही है। और आपको पता है प्रेजेंट टाइम की जब हम बात करते हैं, लाइक द महिंद्रा को लेके हम बात करें, टाटा को लेके हम बात करें, ग्लोबल एनकैप के अकॉर्डिंग टाटा और महिंद्रा की कारें काफी ज्यादा सेफ्टी रैंकिंग को लेके हम बात करें तो आज बहुत अच्छी कारें बनाने लगी है और इनका जो कार का मटेरियल है या बॉडी है वो काफी अच्छी है, इसके जैसे डेवलप होते जा रहे हैं। तो जो हम सेक्टर्स की बात कर रहे हैं ऑटोमोबाइल सेक्टर को लेकर, तो कहीं ना कहीं इंडिया अब बहुत ज्यादा डेवलप हो चुका है इस सेक्टर के अंदर भी। लेट्स टॉक अबाउट द ऑटोमोबाइल सेक्टर। दिस इंडस्ट्री डील्स विद द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ट्रक्स, बसेस, कार्स, मोटरसाइकिल्स, स्कूटर्स, थ्री व्हीलर्स एंड द मल्टी यूटिलिटी व्हीकल्स। एमयूवी को लेके हम बात करें, एसयूवी को लेके हम बात करें, हैवी व्हीकल्स को लेके हम बात करें, सभी तरह के व्हीकल्स बनने लगे इंडिया के अंदर। और कहां पर इनका फैक्ट्री लोकेशन है, देखिए दिल्ली, गुड़गांव या गुरुग्राम, मुंबई, पुणे, चेन्नई, कोलकाता, लखनऊ, इंदौर, हैदराबाद, जमशेदपुर एंड द बेंगलुरु आर द सम इंपॉर्टेंट लोकेशन फॉर द डेवलपमेंट ऑफ ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्री, आईटी सेक्टर को लेके बात किया गया है। The electronics industry covers a wide range of products from transistors, sets to televisions, telephones, cellular telecom, telephones exchange, radars and computers and many other equipment required by the telecommunication industry. अगर हम बात करें different kinds of things की requirement होती है into the communication or we can say the IT sector. That's why इंडिया जो है डिफरेंट काइंड्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स को बनाना स्टार्ट कर दिया है, जिसके अंदर हमने सेलुलर टेलीकॉम की बात की, टेलीफोन्स की बात की, हमने टेलीफोन एक्सचेंज की बात की, रडार्स को लेकर हमने बात की। तो इन सभी के अंदर इंडिया डेवलप हो चुका है काफी ज्यादा। देन द नेक्स्ट,
This industry has generated employment in India. Bangalore is known as the electronic capital of India, or we can say the Silicon City of India also. Clear? Then next. Now the question for the map work, that write about the or locate some technological park. जहां आपके सामने क्वेश्चन होगा वहां से आपको सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजिकल पार्क के बारे में लिखना है। पहले आपके एग्जाम के लिए काफी सारे टेक्नोलॉजिकल पार्क थे, लेकिन अब उन्हें रिड्यूस कर दिया गया है। एक्सफिक्स लोकेशन आपके सामने आती है पुणे वाली, कि पुणे सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क कहाँ है। तो जैसा कि आपको पता है मुंबई और पुणे दोनों कहाँ पर है, महाराष्ट्र के अंदर। जब हम बात करते हैं इंदौर को लेकर, वो आपका एमपी के अंदर है। नोएडा को लेकर हम बात करें तो नोएडा आपका दिल्ली में लोकेटेड है। मोहाली आपका कहाँ पर है, आप चले देखिए, आप लोकेशन के अकॉर्डिंग हम बात करते हैं तो कुछ ही ऐसे हैं जो बोर्ड एग्जाम के अंदर आपसे पूछे जाएंगे, सारे के सारे यहाँ हम बात करने वाले नहीं है। भुवनेश्वर आपका उड़ीसा में चला गया है, हैदराबाद आपका तेलंगाना में चला गया है, ठीक है। और यहाँ हम बात करते हैं, अगर बेंगलुरु को लेकर आप बात कर लीजिए और मैसूर को लेकर आप बात कर लीजिए तो ये आपकी कर्नाटक में लोकेटेड है। एक आपका थिरुवनंतपुरम, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, केरला के अंदर, और चेन्नई आपका तमिलनाडु के अंदर। देयर आर द सम टेक्नोलॉजिकल पार्क जिसको लेके उनकी लोकेशन को लेके आपसे क्वेश्चन अटेम्प्ट करने के लिए बोर्ड एग्जाम में देखने को मिल सकता है। इंडस्ट्रियल पॉल्यूशन एंड एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द एनवायरमेंट, और जो एक बहुत अच्छा पार्ट है लॉन्ग क्वेश्चन के लिए। डिफरेंट काइंड्स ऑफ पॉल्यूशन हम जानते हैं, वी हैव द 4 टाइप्स ऑफ पॉल्यूशन। आपको पता है, एयर को लेकर हम बात करें, लैंड पॉल्यूशन को लेकर हम बात करें, नॉइज पॉल्यूशन को लेकर हम बात करें, वाटर पॉल्यूशन को लेकर हम बात करें। डिफरेंट काइंड्स ऑफ पॉल्यूशन वी हैव ऑन आवर अर्थ, और यहाँ पर सभी एयर, वाटर, लैंड को लेकर बात किया गया है। और इंडस्ट्रीज के अंदर कहीं ना कहीं ये चारों पॉल्यूशन हमें देखने को मिलते हैं। फर्स्ट जो हम बात करने वाले हैं, एयर पॉल्यूशन। It is caused by the presence of a high proportion of undesirable gases such as the sulfur dioxide, carbon monoxide, carbon dioxide. Smoke is emitted by the chemical and paper factories. आपको पता है कि धुआं निकलता है कई डिफरेंट काइंड्स के इंडस्ट्रीज से, और वो धुआं कहाँ जाएगा, वो जाके एयर में मिलेगा, और एयर में ऐड होने के बाद क्या करेगा, वो एयर को मतलब कि कहीं ना कहीं पोल्यूट करने वाला है। लिखा हुआ है, रिफाइनरीज एंड द स्मेल्टिंग प्लांट्स एंड द बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल्स लीड्स टू द एयर पॉल्यूशन। इन सब की वजह से क्या हो पाता है, एयर पॉल्यूशन होता है। इट एडवर्सली अफेक्ट्स द ह्यूमन हेल्थ, एनिमल्स, प्लांट्स, बिल्डिंग्स एंड द डिफरेंट काइंड ऑफ एटमॉस्फेयर एज ए होल। ये किसी न किसी तरीके से सभी डिफरेंट काइंड्स ऑफ एनिमल्स की हम बात कर रहे हैं, हम ह्यूमन बीइंग की बात कर रहे हैं, या प्लांट को लेकर हम बात कर रहे हैं, उनके ऊपर इंपैक्ट डालता है। देन द सेकंड, वाटर पॉल्यूशन। देखिए, जो इंडस्ट्रियल वेस्टेज होगा उसको हम अगर पानी में डाल देते हैं या रिवर्स के अंदर हम सेंड कर देते हैं तो उसकी वजह से कहीं ना कहीं क्या होता है, वाटर भी पोल्यूट होता है। वाटर पोल्यूशन इज कोज्ड बाय द ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक इंडस्ट्रियल वेस्टेज एंड द एफ्लुएंट्स discharged into the rivers. The industries which are the most mainly responsible for the water pollution are the paper industry, pulp industries, chemical industries, textile and the dyeing industries, or we can say the petroleum refineries, tanneries and the electroplating industries. These are the most responsible industries for the water pollution. Now the next, thermal pollution, or we can say it the land pollution of water occurs when hot water from factories and the thermal plants is drained into the rivers and ponds before cooling. ये thermal pollution की बात की गई है, जो हम गर्म पानी को ठंडे पानी में मिला देते हैं तो कहीं ना कहीं हमें क्या देखने को मिलता है, thermal pollution. Then the next, noise pollution. आपको पता है इंडस्ट्रीज के रन होने से काफी तेज साउंड आपको सुनाई देगा और उसकी वजह से क्या क्रिएट होगी आपके सामने, नॉइज पोल्यूशन, और वो क्या प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, इट रिजल्ट इन irritation, anger, cause of hearing impairment, or we can say that increase heart rate and the blood pressure also. These are the some impact of the noise pollution. Now the next, control of environmental degradation, very important part again. अब हम यहाँ बात करने वाले हैं कि कंट्रोल कैसे करना है। पहला आपके सामने लिखा हुआ है, हाउ कैन वी कंट्रोल द एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन। द फर्स्ट पॉइंट इज मिनिमाइजिंग द यूज ऑफ वाटर बाय रीयूजिंग एंड रिसाइकलिंग इट। हमें क्या करना है, रीयूज करना है, रिसाइकलिंग करना है पानी का, ताकि कम से कम उसका वापस से क्या हो, यूज हो, मतलब हम वेस्टेज ना करें। सेकंड, हार्वेस्टिंग रेन वाटर टू मीट वाटर रिक्वायरमेंट्स। अब देखिए, आपको जो हम बात कर रहे हैं वाटर हार्वेस्टिंग को लेकर के, वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम को लेकर जब बात की जाती है तो हमें इसकी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग क्या करना पड़ेगा, हार्वेस्टिंग रेन वाटर। रेन वाटर को भी हमें क्या करना पड़ेगा, बिल्कुल एक अच्छे तरीके से जमा करना होगा पानी को, ताकि इसे बाद में यूज में लिया जा सके। ट्रीटिंग हॉट वाटर एंड एफ्लुएंट्स बिफोर रिलीजिंग देम इन द रिवर्स एंड पॉन्ड्स। डायरेक्टली हमें रिमूव नहीं करना है पानी को, कहां पर, रिवर या पॉन्ड्स के अंदर, ताकि वो पानी को पॉल्यूट ना करे। उससे हमें क्या करना है, प्यूरिफाई करना है या अलग से उसे ड्रेन करना है। देन
Particulate matter in the air can be reduced by fitting smokestacks to factories with the electrostatic precipitators, fabric filters, scrubbers and इनर्शियल सेपरेटर्स। अगर हम बात करें एयर के फिल्टर के लिए तो डिफरेंट काइंड्स ऑफ एयर फिल्टर का हम यूज करके या प्यूरिफायर्स का हम यूज करके एयर को प्यूरिफाई कर सकते हैं, सीधा हम उसे स्मोक जो हम बात कर रहे हैं एयर के अंदर रिमूव नहीं करेंगे। देन द नेक्स्ट, स्मोक कैन बी रिड्यूस बाय द यूजिंग ऑयल और गैस इंस्टेड ऑफ कोल इन फैक्ट्रीज। हो सकता है तो हमें कोल की जगह किसका यूज करना है, एज ए पावर सप्लाई के लिए हमें लिखा हुआ है गैस का या ऑयल का यूज करना है, पेट्रोकेमिकल्स का हमें यूज करना है, पेट्रोल का हमें यूज करना है ताकि स्मोक कम से कम बने। देन द नेक्स्ट, मशीनरी कैन बी रीडिजाइन टू इंक्रीज एनर्जी एफिशिएंसी एंड रिड्यूस नॉइज। हमें इस तरह का मशीन डेवलप करना है या हमें इस तरह की मशीन्स को वापस से या एक मॉडर्नाइजिंग मशीन्स का यूज करना है ताकि जो डिफरेंट काइंड्स ऑफ पोल्यूशन हमें देखने को मिलते हैं, चाहे वो एयर हो, चाहे वो वाटर हो, चाहे वो नॉइज हो, वो कम से कम हो। अब हम वापस से मैप वर्क को लेकर बात करने वाले हैं। देखिए हमने सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क को लेकर बात कर ली थी, इसी चैप्टर के अंदर से आपको मैप मिलने वाला है अबाउट द टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज को लेकर, जहां डिफरेंट लोकेशन को लेकर आपसे बात करेगा। पहला आपके अगर आता है तो कानपुर जो यूपी के अंदर लोकेटेड है। देन इसके अंदर हम बात करते हैं देवास, वडोदरा और इंदौर को लेकर, जो तीनों के तीनों कहां पर है, आपके एमपी के अंदर। देन सूरत को लेकर हम बात करें तो ये आपका गुजरात के अंदर है, सॉरी ये वडोदरा आपका गुजरात में चला गया है। मैंने देवास को लेकर बात की, उज्जैन को लेकर बात की, इंदौर को लेकर बात की, 3। देन यहां जब हम बात करते हैं पोरबंदर, ये भी कहां पर है, आपका गुजरात में लोकेटेड है। कॉटन टेक्सटाइल को लेकर हम बात करने वाले हैं यहां पर, ठीक है। नेक्स्ट जो हम बात कर रहे हैं कोयम्बटूर को लेकर, ठीक है। देन मदुरई को लेकर आप बात कर सकते हैं, इनका लोकेशन जो है वेरी इंपॉर्टेंट है। चेन्नई अगेन आ गया है आपके सामने। देन अब वुलन टेक्सटाइल बहुत रेयर चांस से पूछने वाला है आपसे, वो कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज की लोकेशन को ही बात करता है मोस्टली। तो ये आपका वाराणसी है, सिल्क टेक्सटाइल को लेकर दिया गया है, क्लियर। ये कानपुर हो गया आपका। अब इसके बाद जो हम बात करने वाले हैं नेक्स्ट, वो क्वेश्चन क्या होगा आपका, ये क्वेश्चन है आपका, और ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आयरन एंड स्टील प्लांट्स को लेकर के, कि बोकारो स्टील प्लांट कहां पर है आपका, या हम बात करें दुर्गापुर प्लांट कहां पर है आपका, बर्नपुर प्लांट कहां पर है आपका, राउरकेला कहां पर है आपका, ठीक है, भिलाई कहां पर है आपका। देखिए ये छत्तीसगढ़ रहा आपका, ये झारखंड है, और यहाँ भद्रावती आपको दिखाई दे रहा है, ये विजयनगर हो गया आपका, दोनों कर्नाटक के अंदर। यहाँ सलेम हो गया आपका तमिलनाडु के अंदर। लोकेशन को लेकर बात कर रहे हैं आयरन एंड स्टील प्लांट्स, ये विशाखापट्टनम हो गया आपका। इन सभी को हमें एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के रूप में, मैप वर्क के रूप में देखना होगा, और इनका लोकेशन जो है, वेयर इज द लोकेशन। देखिए आप स्टेट्स अगर आपको मालूम है, स्टेट्स में आप इन्हें कहीं भी लोकेट कीजिए। जिससे हम बात कर रहे हैं, अगर देखिए ये आपका बंगाल हो गया यहाँ पर। अब बंगाल के अंदर बात करें दुर्गापुर को लेकर आप बात कर सकते हैं। उड़ीसा की हम बात करें, राउरकेला आपका लिखा हुआ है उड़ीसा के टॉप पर, नॉर्दर्न पार्ट के अंदर। तो आप इसे अगर यहाँ भी मेंशन कर देंगे तो ये आपका आंसर राइट माना जाएगा, रॉन्ग नहीं होगा। सो प्लीज बी अवेयर अबाउट द मैप वर्क, जहां से आपको 2 मार्क्स के क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं। एक 5 मार्क्स का क्वेश्चन आपको इंपॉर्टेंस ऑफ सेकेंडरी सेक्टर और द मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री आपको देखने को मिल सकता है। एक शॉर्ट टाइप का क्वेश्चन आपको मिल सकता है देखने के लिए, कहां से, व्हाट आर द मेन factors for the location of an industry. So this was your chapter that has been completed, और मोस्टली यहाँ मैंने चैप्टर के स्टार्टिंग से लेके एंडिंग तक, या NCERT के जो मेन टॉपिक्स थे जहां से क्वेश्चन आने वाले थे आपके, या जो क्वेश्चन आपको रिलेट करेंगे बोर्ड एग्जाम के अंदर, वो मैंने यहाँ डिफाइन किया, आपके सामने एक्सप्लेन किया चीजों को। मैप वर्क आपको अच्छे से देख लेना है। लास्ट के अंदर हमने दोनों मैप वर्क को लेकर बात की, जहां हमने आयरन एंड स्टील प्लांट को लेकर बात किया, और कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज को लेकर हमने बात किया, जूट वाली इंडस्ट्री को लेकर हमने बात किया। यहां से 100% मैप वर्क में क्वेश्चन आने वाला है। स्टील प्लांट को लेकर बात करें या आयरन को लेकर हम बात करें, एक क्वेश्चन जरूर मिलेगा आपको मैप वर्क के अंदर। इंपॉर्टेंस को लेकर मैंने बात की, या डिफरेंट काइंड ऑफ इंडस्ट्रीज को लेकर हमने बात की, उनका कंट्रीब्यूशन क्या है, उनकी इंपॉर्टेंस क्या है, वहां से भी आपको क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। सो दिस वाज योर चैप्टर दैट हैज बीन कंप्लीटेड। नाउ बाय, थैंक यू एंड टेक केयर। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम।